A very good morning to all of you. Today we are discussing about the antidepressant drugs. Antidepressant. So let us start with a basic introduction of uh, antidepressant. So firstly, we must know what is depression, how the depression will develop within the individuals. Okay. So uh, this is the introduction of this is the introduction of depressions. Okay. Is a basic definition of depression. What is depression? Depression is a pathological change in the mood. Depression is a pathological change in the mood. It means a mental health disorders characterized by the persistently depressed mood of loss of interest in activities causing significant impairment in daily life. Okay. करेंगे जो हमारा डिप्रेशन होता है पैथोलॉजिकल चेंज इन द मूड मीन्स मूड जो होता है जो हमारा नॉर्मल एक्टिविटीज होती है उसमें क्या होती है चेंजिंग आ जाती है और एक क्या होता है मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो ब्रेन से रिलेटेड होंगे ये क्या करेगा परसिस्टेंटली लगातार क्या करेगा मूड को डिप्रेस कर देगा और क्या करेगा जो भी एक्टिविटीज है डेली के रूटीन में उसकी इंटरेस्ट में वो कमी आएगी जिससे हमारा क्या होगा सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन डेली लाइफ जो भी हमारा डेली लाइफ का वो एक्टिविटीज होगी उसमें क्या होगी इम्पेयरमेंट होगी जैसे हमारा सैड मूड रहेगा लो एनर्जी रहेगी चेंज इन एपेटाइट्स होगी लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा pleasures worthlessness and so that and you can say depression is a mood disorder okay you can say क्या है डिप्रेशन हमारा क्या है मूड डिसऑर्डर है depression is a mood disorder okay that cause a persistent feeling of sadness and loss of interest in the things. It means क्या होती है ये क्या करेगा persistent जो तुम्हारी feeling है उसकी sadness होगी और loss of interest होगी in the things में and activities you once enjoy. It can also cause the difficulty with thinking, memory, motivation, eating and sleeping. मतलब those who have those who are suffering from the depressions, uh, it can also cause difficulty with the thinking, memory, motivation, eating, and sleeping. Okay, so this is the basic introductions uh, of depression. Okay, moving to the next slides. This is the antidepressant. This is the basic definition of antidepressant. What is antidepressant? Antidepressants are prescription medications that help ट्रीट द डिप्रेशन कह रहा है एंटी डिप्रेशन वो मेडिसिन है जो क्या करती है हेल्प करती है हमारे डिप्रेशन को ट्रीट करने में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हमारे होते हैं वो प्रोवाइड करेंगे क्या डिप्रेशन मेडिसिन ट्रीट द अदर कंडीशन एज वेल ओके तो see the points drug which enhance the alertness and the may result in increased output of behaviors okay ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या करेगी जो भी अल्टरनेस है सैड मूड इसको क्या करेगी इनहेंस करेगी हमें रिजल्ट एंड इंक्रीज आउटपुट ऑफ बिहेवियर और बिहेवियर के आउटपुट को इंक्रीज करेगी ओके और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या करती है पोटेंशिएट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द एक्शन ऑफ डोपामिन सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन ओके ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा डिप्रेशन डेवलप होता है जब हमारा सीरोटोनिन और नॉन एड्रेनलिन हमारे डिक्रीज हो जाएंगे इन ब्रेन के अंदर तो हमारा क्या होगा डिप्रेशन कॉज करेगा तो हमारा एंटी डिप्रेशन क्या करेगा इसी को क्या करेगा इसी के एक्शंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करेगा पोटेंशिएट करेगा नीचे लास्ट पॉइंट हमारे क्या द पर्पस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट इज टू इंक्रीज द न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्स मतलब यही सेरोटोनिन नॉन एडेनिन हमारे साइनेप्स में जब हमारे ज्यादा हो जाएंगे तो हमारा डिप्रेशन ट्रीट हो जाएगा ओके तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिप्रेशन ओके पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन हमारा डिप्रेशन कैसे डेवलप होता है पेशेंट के अंदर तो when
when the monoaminergic neurotransmitters are reduced within the brain, then depression will develop into the individuals. Okay, it means monoaminergic neurotransmitter means monoaminergic neurotransmitter serotonin हो गया हमारा 5-HT3 and norepinephrine. This is the monoaminergic neurotransmitter. Whenever the monoaminergic neurotransmitter are reduced within certain areas of brain, so then patients suffer from the depressions. You can see here this is the neuron, one neuron, and second neuron here, presynaptic neuron is a postsynaptic neuron. Okay, here is the serotonin, here is the norepinephrine. Okay, you can see here. Firstly, this is the neuron. Synthesis of norepinephrine. Norepinephrine is a neurotransmitter. When जब हमारा नॉन क्या होगा, कम हो जाएगा ब्रेन के अंदर, हमारा डिप्रेशन कॉज करेगा. तो सिंथेसिस ऑफ नॉन का हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ टायरोसिन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप. टायरोसिन को हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया इनटू द न्यूरॉन्स के अंदर, जहाँ टायरोसिन हमारा डोपा में कन्वर्ट हो जाएगा और डोपा कन्वर्ट होगा डोपामिन. ओके, यही डोपामिन हमारे वेसिकल में जाने के बाद नॉन एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा. हमारा नॉन एपिनेफ्रिन वेसिकल में स्टोर रहेगा. जैसे हमारा कैल्शियम अंदर आएगा ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जैसे कैल्शियम अंदर आएगा तो ये कॉज करता है हमारा फ्यूज करेगा हमारे वेसिकल्स को, और ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को आपस में फ्यूज करेगा. जब जब ये फ्यूज करेगा तो हमारा नॉन एपिनेफ्रिन क्या आएगा, रिलीज होगा इनटू द साइनेप्स में. यही हमारा साइनेप्स है. साइनेप्स इज अ प्लेस वेयर द न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज एंड बाइंड टू देयर रिस्पेक्टिव रिसेप्टर. यहाँ से हमारा न्यूरोट्रांसमीटर निकला, आके अपने रिसेप्टर पे बाइंड कर दिया. अगर ये हमारा नॉन एपिनेफ्रिन है तो इट विल बाइंड टू दी it will bind with the alpha receptors. Okay, but in the case of serotonin, it will bind to the 5-HT receptor after releasing. Okay, समझ में आ गया. तो ये 5-HT3 हमारा क्या हुआ, रिलीज हुआ और बाइंड किया 5-HT रिसेप्टर से. ठीक, here is the non-epinephrine. Moving to next one. This is the cause. डिप्रेशन कॉज कैसे होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लॉस ऑफ लव्ड वंस, अल्कोहल एंड ड्रग्स, जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री एंड मेंटल इम्बैलेंस. रिस्क फैक्टर्स, पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री, सर्टेन लाइफ इवेंट और एक्सपीरियंस, क्रोनिक इलनेस और ब्रेन पेन, substance abuse, lack of social support, suicidal thought in mind, personal characteristic, chronic stress. These are the cause by which the depression will develop into the individuals, and these are the risk factor in the depression. This is the classification of the antidepressants. This classification is taken out from the K.D. Tripathi. First is the reversible inhibitors of MAO-A. MAO-A, it has two medicines, macrobamide, chlorgyline, and second one tricyclic antidepressant. This TCA is divided into two types: non-epinephrine 5-HT reuptake inhibitors, and the following medicine: imipramine, amitriptylines, imipramine, amitriptyline, tryptophan, doxycycline, doxycycline. These are the medicines which undercome the non-epinephrine and 5-HT. These medicines only inhibits the monoaminergic neurotransmitter. What monoaminergic neurotransmitter? Non-epinephrine 5-HT के reuptake को inhibit कर देगी, जिससे हमारे क्या होगी, इस न्यूरोट्रांसमीटर की अवेलेबिलिटी में साइनेप्स में बढ़ जाएगी. ओके, यही से हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता चल गया. Predominantly non-adrenergic reuptake inhibitors, dispramide, nortriptyline and reboxetine. ये हमारे ये तीनों मेडिसिन क्या करेगी, सिर्फ प्रीडोमिनेटली मतलब पहले ही क्या करेगी, नॉन एड्रेनल को ही ब्लॉक कर देगी.
रिएप्टिक को, जिससे हमारा नॉन आइडियल हमारा रिएप्टिक नहीं हो पाएगा बेसिकली उसके अंदर, और अवेलेबिलिटी साइनेप्स में बढ़ जाएगी, जिससे हमारी एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी शो करेगा। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टिक इनहिबिटर SSRI हम कहते हैं। These are the following medications which undercome the SSRI: fluoxetine, fluoxamine, paroxetine, sertraline, citalopram, escitalopram, deruxtecan. Okay, most commonly used in the depressions. Serotonin non-adrenergic reuptake inhibitor SNRI. Okay, ये जो मेडिसिन होती है ये क्या करेगी, ये हमारे सेरोटोनिन नॉन-एड्रेनर्जिक रिuptake inhibitors को दोनों को क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी. Venlafaxine, divenlafaxine and duloxetine. Duloxetine are most commonly used and available in the market. All the medicines, all the antidepressant medicines only you can purchase with the help of prescription, otherwise you can't purchase. This is the prescription medication. Undercome which schedule? Schedule H के अंदर आती है. सब मेडिसिन किसके अंदर? Schedule H के अंदर आएगी. Okay. Let's discuss about the mechanism of action one by one. Reversible inhibitors of MAO, macrolopamides, yes. It is reversible and selective MAO inhibitors. Okay. ये क्या होती है? रिवर्सिबल होती है और सेलेक्टिव MAO inhibitors होती है. MAO ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होती है जो रिस्पॉन्सिबल होगी डीएमाइनेशन ऑफ बायोजेनिक एमाइन. बायोजेनिक एमाइन हमारे कौन है? एड्रेनालिन हो गई है, नॉन एपिनेफ्रिन है. इसी को क्या करेगी? डीएमाइनेट कर देगी. ओके. अब MAO है जो हमारे लिए प्रेफरेंशियली डीएमाइनेट करेगी 5-HT एंड नॉन एड्रेनालिन को, which can be inhibited by the chlorogylin macrolopamides. Okay. Older patient में those patient who have the heart disease, cardiovascular disease in older patient has good activities. Okay. Full MAO activity restore होती within 1 to 2 days of stopping the drugs. What is the mechanism of actions of macrolopamides? Then reversibly inhibit करेगी enzyme MAO को and prevent करेगी degradation of biogenic amines. जो भी हमारे biogenic amine है इपिनेफ्रिन और 5-HT, इसी के जो डिग्रेडेशन हो रही है, जो आपस में ब्रेकडाउन हो रहे हैं, उसी को प्रिवेंट कर देगी, डिग्रेड हो नहीं पाएगी, जिसकी वजह से हमारे क्या होंगे, बायोजेनिक एमाइन हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लगेंगे, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्यूमुलेट होने लगेंगे. जब एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, जो उसका रिसेप्टर है, रिसेप्टर पे जाकर के रिपीटिव बाइंडिंग करेंगे, बार बार क्या होगी, बाइंड करेंगे. बाइंड होने के बाद क्या होगा, हमारा मोडल एक्टिविटी को स्टेबलाइज करेगी और डिप्रेशन एक्टिविटीज कॉज करेगी. मतलब मींस repeated binding of neurotransmitters to its receptor. You can see here this is the receptors. Okay, means मेडिसिन आएगी, रिलीज होने के बाद साइनेप्स के अंदर यहाँ पर रिसेप्टर से क्या करें, रिपीटिव बाइंड करेंगे. जब यहाँ पे आ गई तो हमारे क्या होगा, साइनेप्स एक्यूमुलेट हो रही है ब्रेन के अंदर, तो अवेलेबिलिटी बढ़ जा रही है. जब बढ़ेगी तो रिपीटिव बाइंड करेगी रिसेप्टर पर, जब बाइंडिंग करने के बाद ही अपनी एक्टिविटी शो करेगी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन. Let's talk about the ADRs and therapeutic use. You can say headache, excitement, arousal, tremor, tremor. These are the side effects of the macrolopamides. Therapeutic use: treating social anxiety disorder, treating migraines, and panic disorders. Okay. And second class was the tricyclic antidepressant. Tricyclic antidepressant में हमारा इमिप्रोमाइन एग्जांपल्स है, एनालॉग होता है क्लोरफॉर्माजिन का. एक्ट कैसे करेगी, एक्ट हमारी करेगी, एक्ट करेगी रिएप्टेक ऑफ नॉन एडेनिन 5-HT टू द न्यूरॉन्स. मींस हमारा न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के अंदर क्या करेगी, यू कैन से हियर मींस हमारी मेडिसिन क्या, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट इमिप्रामाइन से. इमिप्रामाइन, हाउ द इमिप्रामाइन एक्ट मींस आफ्टर रिलीज इनटू द साइनेप्स, मींस नॉन एपिनेफ्रिन क्या हुआ, फ्यूज करने के बाद हमारे साइनेप्स में आके एपिनेफ्रिन यहाँ आया, यहाँ आने के बाद क्या कर रहा है, वो इनहिबिट्स करेगा रिएप्टेक ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, रिएप्टेक द नॉन एपिनेफ्रिन इनटू द साइनेप्स. मींस ये हमारा क्या, प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर है. ठीक, प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर से ये हमारा क्या, ट्रांसपोर्टर है, एनई ट्रांसपोर्टर, नॉन एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर. तो रिलीज होने के बाद कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो जाएंगे रिसेप्टर के साथ, और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, रिएप्टेक हो जाते हैं.
जब यहाँ से रीअपटेक होगा तो हमारे यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की अवेलेबिलिटी सिनेप्स में कम होगी, तो हमारा मूड क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा। तो इसी को जब हम इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या करेंगे, इनिबिट कर देंगे, इनिबिट कर दिए, रीअपटेक कर दिए, किस चीज से, न्यूरोट्रांसमीटर जाना पर इसी ट्रांसपोर्टर को ही रीअपटेक करें, तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर अक्यूमुलेट होने लगेगा यहाँ पे और रिसेप्टर से बार बार बाइंड करेगा, रिपीटिंग पर एक्टिविटी को शो करेगा। ठीक, यही चीज है, इनिबिट करेगा रिएक्टिव ऑफ नॉन एडिन 5-HT इनटू द रिस्पेक्टिव न्यूरॉन्स और इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन ऑफ नॉन एडिन 5-HT विद इट रिसेप्टर साइड। ठीक है, और उसके रिसेप्टर साइड पे न्यूरोट्रांसमीटर की अमाउंट को ज्यादा करेगा, इससे हमारा रिपीटिव बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ और मूड और एक्टिविटीज को स्टेबलाइज करेगा और अपना एक्टिविटी शो करेगा। एंड this is the ADR of TCA, headache, dry mouth, drowsiness, constipation, tachycardia, hypotension. This is the therapeutic of severe depressions, depression with anxiety, bad breathing in children, chronic or psychogenic pains, bipolar disorder, neuropathic pain, migraines. Okay. And third one is selective SSRI inhibitor, hepatic inhibitors. Okay. The SSRI group of antidepressant drug that scientifically inhibit the serotonin reuptake, while the SNRI that non-selective inhibit the reuptake of non-epinephrine and serotonin. कह रहा है कि जो हमारी SSRI ग्रुप की मेडिकेशंस हैं वो स्पेसिफिकली सिर्फ सेरोटोनिन को ही ब्लॉक करेगा, ना कि नॉन एडेनिन को, ओनली सेरोटोनिन को ब्लॉक करेगा, वाइल जबकि SNRI जो है सेरोटोनिन नॉन रिएप्टेक इनहिबिटर की जो भी मेडिकेशंस होगी वो दोनों को ब्लॉक करेगी, नॉन एपिनेफ्रिन को भी करेगी, सेरोटोनिन को भी करेगी। ओके, मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब ग्रुप ऑफ एंटीडिप्रेसेंट मेडिकेशंस। ओके, जैसे फ्लुक्सेटिन, फ्लुक्सामाइन इज द एग्जांपल ऑफ SSRI। दिस द मेडिसिंस ओके इनहिबिट की इसको रिएप्टेक ऑफ द 5-HT न्यूरोट्रांसमीटर को, जिससे एक्युमुलेशन होने लगा न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ में और रिपीटेड बाइंडिंग होगी रिसेप्टर के साथ, देन डिप्रेशन एक्टिविटी शो करेगा। और इससे एडीआर की बात करेंगे SSRI की, तो बॉडी वेट इंक्रीज, एंड्रोक्सिया, डिजीनेस, सुसाइडल थॉट, सेरोटोनिन सिंड्रोम, रिप्रोडक्टिव डिस्फंक्शन, इंसोम्निया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिया डिसऑर्डर, बुलिमिया नर्वोसा, पैनिक डिसऑर्डर, जनरल एंजाइटी। फोर्थ वन इज सेरोटोनिन SNRI, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। ये जो मेडिकेशन होगी SNRI इज द न्यूरोट्रांसमीटर्स, the blue color is responsible for the non-epinephrine neurotransmitter, serotonin, green color is the responsible for serotonin. Okay, these are neurotransmitters released into the synapse where it is bind to their respective receptors, okay, and produce the pharmacological action, that is antidepressant activities. These medicines, these SNRI medicines, what will do? Reuptake, inhibit the reuptake of both neurotransmitters, बायोजेनिक इम्यून्स दोनों को क्या करेगा, रीअपटेक कर देगा। ठीक है, जब रीअपटेक करेगा तो हमारे सिनेप्टिक क्लट में इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, जब ज़्यादा हो जाएगी तो रिपीटिव बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ, जब रिपीटिव बाइंड करेगा तो इसका मूड और एक्टिविटी ऑटोमेटिकली गेट स्टेबलाइज, स्टेबलाइज होने के बाद इट प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, दैट इज एंटी डिप्रेशन। डिप्रेशन ऑफन अकम्पाइंड विद क्रोनिक painful symptom जैसे बैक पेन एंड द मसल्स की ऑब्वियस विद द SSRI are also effective. Okay, this is about the ADRs that caused by the SNRI medication. When you take the serotonin and non-epinephrine medications, it will produce some side effect. You can say ADRs. The ADRs are gastroenteritis, headaches, dizziness, and the bleeding, and the blood pressure changing, hypothermia, increased bedwetting, sexual dysfunctions. What is the therapeutic use of SNRI? Yes, you can see here depressive disorders, anxiety, post-traumatics, neuropathy, fibromyalgia, migraine. Okay. Last class one is the atypical antidepressant drug. These types of medications or mixed group of medicine, okay, that have actions at several different sites. ये
मिक्स ग्रुप की मेडिसिन होती है जो डिफरेंट साइड पर जाके एक्ट करती है, लाइक बुप्रोपियन इज द मेडिकेशन, मेट्रोजपाइन, नेफाजुलम, विल्डाजुलम. In this, in four medicines, bupropions and metazapine are most commonly used, available in the market. These medications block the transport site for the norepinephrine and serotonin. Okay, and thus इसी तरह क्या करेगा, increase the synaptic concentration of these neurotransmitters and produce the antidepressant. मतलब all the mechanism of actions, all the class of medicines act via the same way, like if you talk about the serotonin only reuptake, inhibit the reuptake of serotonin न्यूरोट्रांसमीटर. जैसे मेडिसिन आपने लिया और वो क्या हुआ, रिलीज हुआ सिनेप्टिक क्लैप में, जाके वो क्या करेगा, बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ, प्रोड्यूस करेगा क्या, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस. ओके, सेम उसी तरह एटापिकल एंटीडिप्रेसेंट भी है. इसमें क्या होगा, बप्रोपियोन लेंगे चाहे मेटाजपाइन लेंगे, ये क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देगी. जहां से रिएक्टिव हो रही है मेडिसिन सिनेप्टिक क्लैप से, उसी के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देगी, जिससे हमारा क्या होगा, रिएक्टिव हो ही नहीं पाएगा वेसिकल्स में और कंसंट्रेशन